Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So in this new series we will discuss about the algorithm of the numerical methods, and in this part we will discuss about the next algorithm of the series of the Gauss methods we already discussed in this particular channel. So the algorithm we will discuss today is the Gauss-Jordan method, and already we discussed the algorithm of the Gauss elimination. The link available into the description box with the numerical part. And again, it's my humble request to all of the students who see that particular video and subscribers who see the video, kindly comment box checking please, because in the comment box the Gauss-Jordan method numerical also available, so you will check it out and after that you will enter into that particular phase. As per the rule of the algorithm, you all know that the starting position of the algorithm with the start value and after that read n value, and same as with the elimination part equations को जैसे हमने लिख के रीड किया था, सेम विद द सेम पार्ट हम रीड कर सकते हैं. 2x1 जैसे हमारी इक्वेशन है 2x1 2x2 2x3 सेम इक्वल्स टू 4. 1 to n मीन्स टोटल कितनी है 2 3 4 5 जितनी है. n अगर 5 है तो 5 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा. सो द थिंग इज़ कि जब आपको कोई भी कंपैरिजन के लिए चीज़ मिलेगी तो थिंक अबाउट कि आपको क्या मिल सकता है उस पार्ट के अंदर. 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है हर इक्वेशन के पार्ट के अंदर. अब हम रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 to n by 1 2 एक एक करके आगे चलते जाओगे तो n+1 तक वैल्यूज़ जाएंगी. मीन्स आपकी इक्वेशन से वैल्यूज़ जब जाएंगी तो यहाँ से शुरू होके एक एक आगे जाती जाएंगी. तो 1+1 2 पहले रीड ए आई जे होगा क्योंकि ये एलिमेंट होते हैं A11 1 2 1 3. that was particularly I already discussed in the previous part algorithm Gauss elimination. So kindly please see that particular video. After that you will shift into that part because that is the very common part at every program level and at every algorithm level, because reading of the array traversing value is compulsory for the computer science students. So when you will enter into the array, index figure is the 0 always, but when you will start from the 1, it will definitely start from the 1, I is equals to 1 and j is equals to 1. And if it is automatically compute by the computer science, that is from the 0 0. The initial value is 0, but when the user input value from the 1, so it will be start from 1. And if you will enter into the 2, अगर 2 से एंटर करोगे तो देखो पहली इक्वेशन तो रीड ही नहीं होगी ना, तो 2 हम एंटर कर नहीं सकते, 1 से ही एंटर करेंगे. एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली 2 4 लूप्स थी, पहले हमारी ये इनर लूप एंड होगी ये वाली, एंड आफ्टर दैट ये वाली लूप हमारी एंड होगी. उसके बाद आती है कि ट्रेवर्सिंग जो हो चुकी है, जो एलिमेंट्स सिस्टम को मिल चुके हैं, उसके बाद उसने स्टेप चलाने हैं, क्योंकि हम टेम्प्रेरी स्टेप्स चलाते हैं फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 1 to n हर पर्टिकुलर पार्ट के लिए. और यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाती है फ्रॉम द स्टार्टिंग फिगर, क्योंकि देखो Gauss-Jordan में हमें बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं चलानी होती जैसे हमने उसमें चलाई थी, क्योंकि इसका पार्ट क्या है कि इसको अपनी अगर फर्स्ट वैल्यू है ये वाली तो इसको सिर्फ बचाना है और इन दोनों को डिलीट करना है. सेम एज विद द इस पार्ट में इसको x2 को प्रिपेयर करना है और इन दोनों को डिलीट करना है. इस वाले पार्ट में x3 को इसको प्रिपेयर करना है और इन दोनों को डिलीट करना है. अब ऑटोमेटिकली जब ये इसके जो 2 डिलीट होंगे, इसके ये 2 डिलीट होंगे, इसके ये 2 डिलीट होंगे, तो ऑटोमेटिकली लास्ट में हमारे पास x3 की वैल्यू बचेगी. फिर हम x2 x1 बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है इस पार्ट के ऊपर. सो इसलिए टेम्प्रेरी वैल्यू में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेम एज पर द रूल सम को देखिएगा Gauss-Jordan के, आपको इसको लेके चलना है और ऑटोमेटिकली वैल्यू इसके साथ सबसे पहले डिवाइड करना है. तो j इज इक्वल्स टू k to n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 2 हम ले लेंगे जब ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट. तो करना क्या होता है, a k j मीन्स a 1 1 1 2
डिवाइडेड बाय द टेम्प्रेरी मीन्स A11 जो टेम्प्रेरी हमारा सिचुएशन था उसके साथ अब चलते जाएंगे वन बाय वन. सो काइंडली सी द video of the Gauss-Jordan method available into the description box. All steps given over into the numerical part. Firstly, you all will solve the numerical on your notebook, and after that see that particular video with the methods, and all things will do very well. So जब तक हमारा पार्ट टेम्पररी सिचुएशन में आके करता जाएगा और हम चलते जाएंगे, चलने के बाद जब हमें वैल्यू मिल जाएंगी कोई ना कोई, तो हम अब उसको कंप्यूट करवाएंगे कि करना क्या है. कंप्यूट करवाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू के. मीन्स अगर हम आगे चले गए हैं फिफ्थ सिचुएशन तक, फिफ्थ तक चले गए हो तो खुद देखो 3 वैल्यू थी तो हम आगे नहीं जा सकते थे ना. हम कर रहे हैं n+1, तो ये तो आगे जाता जाएगा अभी क्योंकि टेम्प्रेरी पार्ट के ऊपर है. तो टेम्प्रेरी पार्ट से बाहर आने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आई इज नॉट इक्वल टू ए के है. 0 से स्टार्ट किया था, सारे एलिमेंट्स हो गए हैं, 3 तक हो गए हैं, 1 तक हो गए हैं, 1 2 हो गया. सारे अगर हो गए हैं तो सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 जितनी भी अगर बड़ी वैल्यूज़ हैं तो ऑटोमेटिकली j इज इक्वल्स टू के टू n+1 तक चलेगा एक आगे और ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता जाएगा. अब स्टेप है कि करना क्या होता है. स्टेप में आप खुद देखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट के पास होता है उसने मल्टीप्लाई होना है, मीन्स की डिवाइड होना है पहले उसने अपने कोऑर्डिनेटर के साथ. जैसे 2 है यहाँ पे 3 है इसका, तो इसने अपने ही एलिमेंट के साथ सबसे पहले डिवाइड होना है, फिर इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फर्स्ट वाली रो से उसको माइनस करना है. अब 1 बाय 1 जब आप स्टेप्स चलाओगे सारे सम के तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी और ऑटोमेटिकली हमारा एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू हो जाएगा. और लास्ट पे आके क्योंकि ये फॉर लूप ने रीड किया था, इसने देखो एरे में डाली थी वैल्यू, ये इनपुट के लिए होती है और ये वाला पार्ट आउटपुट के लिए होता है. अब जब आउटपुट के लिए है तो एंड 4 यहाँ पे भी होनी है क्योंकि हमने ऊपर इसकी एंड 4 तो कर दी है लेकिन इसकी नहीं की, इसकी नहीं की. ये दोनों एंड 4 होनी है. और ये वाली जो एंड 4 है ये स्टार्टिंग पे जब हम कोई 4 लगाते हैं ना उस तरफ भी कर सकते हैं. ये हम कमेंट में डाल सकते हैं एज अ कमेंट कि अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे बाहर लगा दो अगर एक्स्ट्रा होंगी. अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा नहीं है तो आप इसको आगे भी लेके चल सकते हो. और जो हमारे सामने हमें सोल्यूशन मिला होगा वो सारा पार्ट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस. अब आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे AIN+1 तक सारी डिटर्मिन कर देगा और वैल्यू दिखाएगा x1 x2 x3 की. Hope so that particular algorithm is very helpful to all of you, and kindly it's my again humble request to all of you, please see the numerical version also with this, because without numerical that particular part not will be solved by anyone. So if you have any question or query, kindly comment into the comment box. Reply will be given within 24 hours. So the next part of the Gauss-Seidel method definitely uploaded by the tomorrow's video. Till then, take care. Thank you. God bless you.